नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज मैं स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है शरणायना सुर, उसका अंतिम जो पार्ट है वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये अंतिम पार्ट 5 है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा, बहुत पसंद आएगा। और साथ में मैंने इसका स्वाध्याय भी कराने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और उसको सीखने का प्रयत्न करें। तो अब हम उसका जो अंतिम पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। રમજુ હજી પણ ધૂનમાં ને ધૂનમાં જાનની મોખરે ચાલ્યા જ કરતો હતો. પાછળ પાદરમાં ઊભેલા લોકો આ ગાડા માણસની હસી ઉડાવતા હતા. પુત્રી વડાવીને કુટુંબીઓ ભારે હૈયે ઘર તરફ પાછા ફરતા હતા ત્યારે સ્ત્રીઓએ છેલ્લું ગીત ઉપાડ્યું હતું. કેક આવ્યો તો પરદેશી પોપટો બેની રમતા તા માંડવા હેઠ ધુતારો ધૂતી ગયો. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि रमजू जो है वो अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में भारत के साथ वो चल रहा था और पीछे पादर के अंदर जो खड़े हुए जो लोग थे वो इस पागल रमजू की मस्ती कर रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। पुत्री को विदा देकर सारे कुटुंबी लोग दुखी हृदय अपने घर की ओर जा रहे थे। तो उस समय औरतों ने अपना अंतिम जो गीत है वो इस प्रकार गाया था कि भी एक आया था परदेसी पोपटो यानी तोता, बेनी यानी कि बैन खेल रहे थे मंडप के नीचे, और जो दुतारा है यानी लूटने वाला लुटेरा उसे लूट गया, गया। ધૂનમાં ને ધૂનમાં મોટા મોટા ડગ ભરતા રમજુને કાને આ ગીતના વેણ આછા પાતળા અથડાતા હતા. પણ એને ખ્યાલ નહોતો કે પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. પુત્રી વિયોગના દુઃખ દર્દમાં એ જાણે કે દિશા શૂન્ય થઈ ગયો હતો. હવે તો જાનૈયાઓએ પણ મીરની મસ્કરી શરૂ કરી હતી. સાવ મગજમેટ થઈ ગયો લાગે છે. માંગણ કીધા એટલે હાવ આંગળી દેતા પહોંચાને જ વળગે, જીવને સંતોષ જ નહીં. મર વગાડ્યા કરે એનું ભૂંગરું. હાલી હાલીને પગે પાણી ઉતરશે એટલે આફુડો પાછો વળશે ને ઠેઠ સણોસરા સુધા વગાડતો આવે તોય શું વાંધો છે. સામૈયામાં પણ આની જ શરણાઈ કામ આવશે. ગામના મીરને રૂપિયો ખટાવવો મટ્યો, પણ રમજુ સણોસરા સુધી ન ગયો. વચ્ચે કબ્રસ્તાન આવ્યું કે તુરત એના પગ થંભી ગયા. દણમાંથી પાછું ફરેલું ઢોર ગમાણનો ખીરો સૂંઘીને ઊભું રહી જાય એમ કબ્રસ્તાનમાંથી આવતી મરવાના છોડની પરિચિત સોડમ નાકમાં જતાં જ મીર ખચકાઈને ઊભો રહી ગયો. પાછળ વર કન્યાને લઈને ગાડું આવતું હતું અને એની પાછળ જુવાન જાનૈયાઓની ઠીઠિયા ઠોરી સંભળાતી હતી. રમજુની આંખ સામે સાસરે સોંઠતી ગૌરી નહીં પણ સકીના પસાર થઈ રહી. તુરત એનો હાથ ગજવા તરફ વળ્યો. પાદરમાં બુધર મીરાઈએ ધૂળમાંથી ઉસરડો કરીને પરાણે ગજવામાં નખાવેલા પૈસા હાથ આવ્યા. જોયું તો સાચે જ દોથો ભરાય તેટલા દાદમાં મળી ચૂક્યા જણાયા. રાખ રમજુ તો રાજી રાજી થઈ ગયો. હરખ ભર્યો એ ગાડા નજીક ગયો ને બોલ્યો કે લે ગગી, આ કાપડના કરીને આપું છું, અને હજી તો આ રકમનો સ્વીકાર કરે કે અસ્વીકાર થાય એ પહેલાં તો ઉતરતી સંધ્યાના ઉજાસમાં રમજુ કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થઈ ગયો. એની એક આંખ સામે ગૌરીનું કપડું ને બીજી આંખ સામે
સકીનાનું કફન તરવરી રહ્યું. આ ચસ્કેલ માણસના આ વિચિત્ર વર્તાવ બદલ જાનૈયાઓ ફરીવાર ચેષ્ટા કરતા આગળ વધ્યા. દિવસને આથમતે અજવાળે રમજુએ મૃત પત્નીની કબર પાસે બેસીને સરસ સુરાવટ છેડી. એના મિલન અને વિયોગના મિશ્ર ભાવોની ગંગા જમના ગૂંથાઈ ગઈ. પવનની પાંખે ચડીને એ સૂર મોડે મોડે સુધી ગામમાં તેમજ સીમમાં સંભળાતા રહ્યા અને અનેક મિલનોત્સુક તેમજ વિયોગી આત્માઓ આ સુરાવટમાંથી એક સરખી શાંતિ અનુભવતા રહ્યા. પણ કમનસીબે રમજુની શરણાઈની આ છેલ્લી સુરાવટ હતી. એ પછી એ શરણાઈ કે સૂર ગામ લોકોને કદી સાંભળવા મળ્યા જ नहीं. यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि अपनी ही धुन में बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए रमजू के कानों तक ये जो औरतों ने जो गीत गाए थे उस गीत के शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है. पुत्री वियोग के दुख दर्द में जैसे कि वो दिशा शून्य बन गया था कि भाई उसे कौन सी दिशा में जाना चाहिए वो उसे पता ही नहीं चला. अब तो बारातियों ने भी मीर की मजाक मश्करी शुरू कर दी और कहने लगे कि भाई बिल्कुल पागल हो गया है. कहता है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो कैसा लालची है कि भाई थोड़ी सी मदद की तो और ज़्यादा मदद की आशा कर रहा है. उसके जीव को उसकी जान को बिल्कुल संतोष नहीं है, भले बजाते हुए मर जाए. चलते चलते उसके पैरों में पसीना आ जाएगा, थक जाएगा तो अपने आप अपने गांव की तरफ चला जाएगा. और अगर उसे सहने बजाते हुए हमारे गांव अगर आना है तो कोई बात नहीं, हमें सामने से अपने गांव के मीर को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा. लेकिन रमजू सणोसरा गांव तक नहीं गया, बल्कि बीच में जो कब्रिस्तान आया कि तुरंत उसके पैर वहीं पर रुक गए कि जिस प्रकार जो जानवर होता है वो अपनी जगह पर आकर रुक जाता है, वैसे ही कब्रिस्तान से आने वाली जो खुशबू थी, जो सोडम, उस खुशबू, ये जो उसकी सुगंध है, मीर की नाक में जाते ही मीर अचानक वहीं खड़ा हो गया और पीछे वर और कन्या को लेकर जो बैलगाड़ी आ रही थी उसके पीछे ये जो युवान बाराती जो थे उनकी मजाक मस्करी सुनाई दे रही थी. रमजू की आंखों के सामने अभी ससुराल जाने वाली गौरी नहीं लेकिन सकीना जा रही हो ऐसा उसे लग रहा था. और तुरंत उसका जो हाथ है अपनी जेब की तरफ गया. पादर में से बुदर मीराई ने दुल में से जो पैसे उठाए थे और वो पैसे उसकी जेब में डलवाए थे, तो मीर ने जब जेब में हाथ डाला तो बहुत सारे पैसे थे. गरीब रमजू तो खुश खुश हो गया और खुशी के मारे वो बैलगाड़ी के पास गया और बोला कि ले गगी, यानी कि ले बेटा, ये तुझे कपड़े के पैसे दे रहा हूँ. और अभी तो ये जो पैसे लड़की स्वीकार करे उससे पहले ही ये जो रमजू है वो कब्रिस्तान की ओर चला गया. और उसकी आँख के सामने एक तरफ गौरी के कपड़े तो दूसरी तरफ सकीना का कफन उसे दिखाई दे रहा है. इस प्रकार ये जो पागल इंसान के
इस विचित्र वर्तन से सभी बारातियों में एक अलग सी चेष्टा फैल गई और वो आगे बढ़ने लगे। दिवस के अंत में जब सूरज ढल रहा था तो उस समय रमजू ने अपनी मृत पत्नी की कब्र के पास जाकर इस प्रकार सुंदर सहनाई बजाई कि उसके जो सुर है वो सुर हवा में मिलकर गांव के अंदर पूरे सीम में होकर लोगों को सुनाई दे रहे थे। और कहते हैं कि ये जो उसके जो सुर थे, ये सुर उसके अंतिम सुर थे। उसके बाद कभी भी गांव वालों ने इस सहनाई के सुर कभी सुने नहीं और उन्हें कभी सुनने को मिले नहीं। यानी कि इस प्रकार वहीं पर रमजू मीर अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो कहानी है शरणाई सुर, इस कहानी के अंदर एक पिता के पितृवत्सल इंसान की कहानी यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार रमजू को अपनी बेटी सकीना की याद आती है और उसकी याद आते ही उसके जो सहनाई के सुर है वो बदल जाते हैं और गौरी जो थी उस गौरी के रूप में वो अपनी बेटी के दर्शन करता है, गौरी को अपनी बेटी मानता है और अपने सारे पैसे गौरी को दे देता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है एक पितृवत्सल हृदय वाले इंसान की ये कहानी बहुत सुंदर और दर्द भरी कहानी कही जाएगी। दोस्तों, इस लेसन के अंदर कुछ तड़पदा शब्द भी दिए गए हैं जिसे हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दिल्ली यानी उसका अर्थ है दिल्ली शहर। तासीरो बोली रहो यानी कि सूर तालनी रमझटनी મજા આવી। ગોઠિયાણી એટલે કે સહેલી સખી। મૌર્ય વહેતો થયો यानी कि આગળ ચાલવા લાગ્યો। મર થતા यानी ભલે થતો। ગગો એટલે કે છોકરી છોકરો દીકરો। પૂગવું એટલે પહોંચવું। મેળિયું यानी મેળિયો। આણવું यानी कि લાવવું। હાવ એટલે કે બસ। રાતું કાવડિયું यानी રૂપિયાના 64 ભાગનો તાંબાનો જૂનો સિક્કો। મોખરે એટલે કે સૌથી આગળ। ગમાણ જ્યાં ઢોરોને ચારો નાખવામાં આવે છે એ જગ્યા। હરખે એટલે કે હર્ષ। ચસ્કેલ એટલે કે ગાણપણને વશ થયેલું। ધૂતારો એટલે કે ધૂતીને સ્વાર્થ કાઢી લેનારો માણસ। મગજમેટ એટલે કે ગાંડો પાગલ। ગગી એટલે છોકરી। લપરું એટલે કે લપ કરનારું। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જોઈએ તો સુહાગણ તો વિધવા, વિષાદ તો આનંદ, હરખ તો શોક। તો અહીંયા કેટલાક રૂઢિપ્રયોગ શબ્દ પણ આપેલા છે જેવું કે પૈંડું સિંચવું यानी कि સુકન કરવા। અચ્છો અચ્છો વાના કરવા यानी कि લાડ લડાવવા। ઓછું આવવું यानी कि મન દુભાવું, દુઃખ થવું। સોનાના ઝાડ ભળી જવા यानी સમૃદ્ધિ જોવી। હૃદય હાથ ન રહેવું यानी कि હિંમત કે ધીરજ ન રહેવી। તલ પાપડ થઈ રહેવું यानी અત્યંત આતુર થઈ જવું। ધરવ ન થવો એટલે કે સંતોષ ન થવો। દાદ આપવી यानी कि હક લાગુ આપવો। મંત્રમુગ્ધ બનવું यानी દંગ થઈ જવું। ડાગડી ચસકી જવી यानी कि પાગલ થઈ જવું। કેટલાક શબ્દ સમૂહ પણ અહીંયા આપેલા છે જેમ કે કન્યા વિદાય વખત કન્યાની માં મંગળનો દીવો લે છે તે તો રમણ દીવડો। સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી એટલે કે સુહાગણ। ઘરની પાછળની દિવાલ એટલે કે પછી ઘરની બાજુની દિવાલ એટલે કે ઘરો। માથે બાંધવાનું લુગડું પાઘડી ફેંટો એટલે કે માથા બાંધણું। રેશમી દોરીથી ભરેલું ભરતકામ એટલે કે હીર ભરત। જરીના કસબવાળું એટલે કે જરિયન। ઘેરવાળું એટલે કે ઘૂંટણથી પગ નીચે પહોંચતું અંગરખું એટલે કે જામો। રેશમી વસ્ત્ર
સ્ત્રીઓની સર્વસાધારણ સાડી, ઊંચી જાતનું સુંદર વસ્ત્ર એટલે પટકૂડ, ગાલ નીચેનો મોંની અંદરનો ભાગ એટલે ગલોફો, 4 આનીનો જૂનો સિક્કો એટલે પાવલું, બેઠા ઘાટની નાની નાની લોટી એટલે કે ટબુડી, જેની પત્ની મરણ પામી તેવો પુરુષ વિદુર, ખભાની નીચેના હાથના મૂળમાંનો ખાડો એટલે કે કાખ, પગે કરવામાં આવતી કંકુની અર્ચા એટલે પિયળ, તુલસીની જાતનો એક ઉગ્ર ગંધવાળો છોડ એટલે કે ડમરો, મરવો, शुभ काम માટે ઘેરથી તૈયારી સાથે નીકળવું यानी कि सौंधવું। दोस्तों अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि पहला जो प्रश्न है वो MCQ टाइप प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि शरणाईना सूर कृति में कोना वात्सल्य हृदय की बात करवामां आवी छे, तो उसका आंसर होगा रमजूमीर। दूसरा प्रश्न है हवे हालनी झट आम डगले ने पगले दांत लेवा उभो रहीश तो केदी पादरे पोगाड़ीश। आ वाक्य कोण बोले छे, तो बुधर वेवाई। एक एक वाक्य में उत्तर लखो। गौरीना विदाय प्रसंगे रमजूमीर ने कोनु स्मरण थाय छे, तो रमजू ने पोतानी मृत दीकरी सकीनानु स्मरण थाय छे। रमजूमीर पत्नी कबरे फूल चढ़ावा जतो त्यां कया फूल छोड़नी महक ने माणतो, तो मरवा एटले के डमरो। नीचेना प्रश्नोना 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। दादमां मळेला पैसा रमजूमीर गौरी ने शा माटे आपी दे छे? कारण के रमजू गौरी में पोतानी दीकरी सकीनाने जुए छे अने एटला माटे पोतानी दीकरी सकीना समजीने तेने ए पैसा आपी दे छे। शरणाई वगाड़ती वखते रमजूमीर सकीनाने केवी रीते साचवतो? तो ज्यां पण शरणाई वगाड़वा माटे जतो तो रमजू सकीनाने पोतानी पीठ पर बेसाडीने अथवा तो पोताना खभे बेसाडीने के पछी कमर में बेसाडीने ए पोतानी पासे राखतो हतो। नीचेना प्रश्न सविस्तार उत्तर लखो। शरणाईना सूर कृति ने आधारे पितानी वेदनानुं वर्णन करो। आ वार्तानी अंदर एक पितृवत्सल हृदय धरावता व्यक्ति रमजूमीरनी वात करवामां आवी छे, जेमां रमजूमीरनी एक दीकरी हती सकीना, जे 2 वर्षनी नानी हती त्यारथी तेनी पत्नी मृत पामी हती अने तेने नानपणथी ज रमजूए खूब लाडकोड़थी उछेरेली हती। ज्यारे सकीना थोड़ी मोटी थाय छे तो रमजू एनु खूब ध्यान राखे छे, एने कोई पण वातनी कमी आवा नथी देतो अने पोते भूखो रहे छे पण पोतानी दीकरीने सारुं खावानुं आपे छे, सारा कपड़ा आपे छे अने आ रीतना पोतानी दीकरीनुं खूब प्रेमथी लालन पालन करे छे। ज्यारे परणावा लायक थई जाय छे त्यारे एना लग्न करी दे छे अने लग्नना 8मा दिवसे बेदी संजोगोमां एनुं मृत्यु थाय छे अने पोतानी दीकरीनुं आ प्रमाणे अचानक थयेलुं मृत्यु रमजूमीर एनाथी सहन थतुं नथी अने ए जाणे के पागल जेवो थई जाय छे अने के छे के केटलाय दिवसों सुधी तो ए कोईनी साथे वात पण करतो नथी। त्यारबाद रमजूमीर ज्यारे पण कोईना लग्नमा शरणाई वगाड़वा जाय छे त्यारे तेने पोतानी दीकरी सकीनानी याद आवे छे अने एवी ज याद आ वखते रमजूने गौरीना विदाय प्रसंगे आवे छे अने के छे के ए एना शरणाईना स्वरोमां एनी वेदना जणाई आवे छे। गौरी ने पोतानी दीकरी सकीना समझीने पोताना दादमां मळेला बधा ज पैसा रमजू एने कपड़ाना कहीने आपी दे छे अने त्यांथी चाल्यो जाय छे। तो आ प्रमाणे अहींया एक पितृवत्सल पितानी वेदनानुं वर्णन अहींया करेलुं छे।
रमजू मीरનું शब्द चित्र आलेखो। तो दोस्तों यहाँ पर हम रमजू मीर के बारे में लिख सकते हैं कि भाई रमजू मीर जो था वो खूब अच्छी शहनाई बजाने वाला इंसान था। पूरे गांव में सब लोग उसे ही शहनाई बजाने के लिए बुलाते थे। रमजू मीर की जो पत्नी थी वो जब सकीना 2 साल की थी तो उसी समय वो मर गई थी और फिर बाद में रमजू ही अपनी बेटी को माँ और पिता का दोनों का प्यार देता है और उसे बड़े लाड़ प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। उसको हर एक चीज़ देता है और उसकी हर एक फरमाइश को पूरा करने का प्रयत्न करता है। रमजू मीर एक पिता है और पिता के दिल के अंदर अपनी बेटी का जो गम था वो गम रमजू के दिल में भरा हुआ था, क्योंकि जब सकीना की शादी हुई तो 8 दिन के बाद वो अचानक मर जाती है और उसके मरने के समाचार सुनकर रमजू जैसे पागल सा हो जाता है और हर जगह कहीं पे भी वो शहनाई बजाने जाता है तो वो अपनी बेटी सकीना की याद आते ही उसके शहनाई के जो सुर है वो बदल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ रमजू मीर का चरित्र चित्रण दिया गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों ये इस लेसन का अंतिम पार्ट था और जिसे मैंने पूरे स्वाध्याय के साथ पूरे आंसर और उसके जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन उसके आंसर के साथ समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है आपके दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों मेरी आपसे नम्र अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि नया वीडियो जो चैप्टर 3 है उसका जल्द से जल्द आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक्स।